Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. Today I, Fezia Kadwa, is here to illustrate chapter number 18, Wastewater Management of Class 7 Science. Now, what do you understand by waste? Anything that is of no use or that is useless is called as waste. It can be of either types like of solids, gases or liquid. The liquid waste basically is also known as by other names like the sewage, the dirty water or the wastewater. And the clearing of this water is a process of what? Is a process of removing pollutants from the water before it enters into a water body. And this process of cleaning of the water is called as sewage treatment, right? ये जो हमारा process होता है जिसमें हम water को clean करते हैं before गिविंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर को मैनेज करने का, जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, राइट? देन वी हैव द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द वेस्ट वाटर. पहला सोर्स है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ वेस्ट लाइक ह्यूमन एक्सक्रेटा, फूड वेस्ट, एनिमल एक्सक्रेटा, यूरिन, सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा. Second is the agricultural waste. It is basically the wastewater that is generated from farms and agricultural lands. Then we have the municipal wastewater. Wastewater जो offices से, homes से, basically पाइप से, sewage pipes के through carry होकर आता है ना, that is what is municipal wastewater. It basically includes the water from toilets, bathrooms and kitchens. Then we have the industrial wastewater. Industrial wastewater, the wastewater which is coming out from the industries, and it is very rich in chemicals and other harmful substances. Then we have the rainwater. Rainwater wastewater वो होता है basically जब बारिश होती है तो कुछ water जो है वो क्या होता है, वो basically लॉकडाउन हो जाता है और छोटे छोटे गड्ढों में कलेक्ट हो जाता है, स्मॉल पूल्स बना लेता है, और उसमें क्या होते हैं बेसिकली इट इज़ अ होम फॉर मॉस्किटोज एंड अदर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. So that is simply a wastewater. Then we have the petroleum oil. क्या होता है, कभी कभी जब पेट्रोल को हम सी से में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, लीकेज हो जाता है ड्यूरिंग दी ड्रिलिंग एंड शिपिंग, और जो कुछ अमाउंट ऑफ जो पेट्रोलियम ऑयल है वो हमारा सी में गिर जाता है, सी वाटर को पल्यूट कर देता है. तो दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पेट्रोलियम ऑयल. Then we have the sewage. The water containing waste is called as sewage. वो water जिसमें waste हो, that is only called as sewage. It basically includes the garbage, human waste and water that has been used for cleaning, washing and bathing. Sewage also contains dissolved and suspended impurities which we call as contaminants. और जो water contaminant कोई भी पानी पी लेता है, जो कहते हैं नहीं contaminated water है, तो जब कोई contaminated water पी लेता है तो क्या होता है, उसको बहुत सारी diseases हो सकती हैं, like he can suffer from typhoid, from cholera, from polio, from hepatitis, from dysentery, etc. Then we have the next topic, that is the constituents of sewage. पहला क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि आपका यूरिन हो गया, आपका एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, राइट? उसके बाद कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं स्यूएज में, जैसे कि आपका फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, हैवी मेटल्स. देन देयर आर ऑल्सो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर found in these sewage, like we have nitrogen, we have phosphorus, we have potash. Then there are also disease causing microbes that are found in sewage, like जो basically cause करते हैं टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री. इस तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी sewage में पाए जाते हैं. Then we have the wastewater treatment. Now we have discussed about the wastewater, the different sources of wastewater. Now we are going to discuss that how this wastewater is treated. So it is basically treated in the 3 stages. First is your primary treatment. क्या होता है, जो sewage होता है that is carried to a sewage treatment plant through sewers. एंड यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ से वो एक सेटलमेंट टैंक में पास कर दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका जो सॉलिड वेस्ट, जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, राइट? तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज विच इज यूज टू प्रोड्यूस कंपोस्ट एंड बायोगैस. उसके बाद वो मटेरियल्स जो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं स्कम, दिस स्कम इज रिमूव्ड बाय स्किमर.
and then we enter into the secondary treatment. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो वाटर होता है दैट बेसिकली रीचेस द एरिएशन टैंक वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पे कुछ एयर भी ब्लो की जाती है बेसिकली इस प्रोसेस की स्पीड को तेज करने के लिए. देन व्हाट हैपन्स, द मेन पर्पस होता है इस स्टेप का, वो ये होता है कि जो सॉलिड चीज़ें अभी भी बची हुई हैं वो क्या करें, वो नीचे सेटल हो जाए. And this is called as activated water sludge or secondary sludge, right? Then this activated sludge is mostly a water waste and it is passed through sand beds to separate the solid material out of it. And then this solid waste can be used as a manicure. And then later on we enter into the tertiary treatment. Tertiary means the last treatment, the last stage of the treatment. क्या होता है, कभी कभी वाटर को और भी ट्रीट करना पड़ता है बिफोर पासिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज. क्या होता है, वाटर कैन बी पास्ड इनटू सैंड फिल्टर्स और मैन मेड पॉन्ड्स विद वीड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक दी हाइसिंथ व्हिच कैन क्लीन आउट डिसॉल्व केमिकल्स. कुछ ऐसी चीज़ें उनमें डालकर, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ कह सकते हो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज डाले जाते हैं जो बेसिकली जो वेस्ट होता है पानी का उसे रिमूव कर सकते हैं. Then the water is also disinfected with chemicals like chlorine or may be exposed to the ultraviolet rays of the sun basically to kill the disease causing microorganisms that are present in that water. Then this water is discharged into the distribution system. ठीक है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया जाता है. एंड देन दिस ट्रीटेड वाटर इज फाइनली रिलीज्ड इनटू द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स. Then we also have certain alternative methods for sewage disposal. पहला है उसमें सेप्टिक टैंक. ये बेसिकली रूरल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है और इसमें क्या होता है, एक सीमेंटेड टैंक होता है जिसमें एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं. सेकेंड इज द कंपोस्टिंग पिट्स. इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है उसको एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, कंपोस्टिंग पिट्स में एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और विद इन अ टाइम पीरियड जब बहुत टाइम बीत जाता है तो उसी को हम वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस मैन्योर इज यूज्ड फॉर बेसिकली गिविंग न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. देन वी हैव अ न्यू टेक्निक, अ न्यू मेथड दैट इज द वर्मी पोस्टिंग टॉयलेट्स. ये एक नया मेथड है जिसमें बेसिकली रेड वर्म्स का यूज किया जाता है टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ वर्मी कंपोस्ट. दिस इज वेरी सिंपल, हाइजेनिक एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेस वाटर. Then we have the last topic of this chapter that is the कि किस तरह से हम ये जो भी डिफरेंट जो मेथड्स हैं जो हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं इन्हें हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. पहला है कि ऑयल या किसी भी तरह का कोई भी फैट सब्सटेंस हमें ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारे जो पाइप्स होते हैं, जो ड्रेनेज के पाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के, वो आपके चोक हो जाते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो फैट होता है या ऑयल होता है वो जम जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, पानी का मूवमेंट में हिंड्रेंस होता है और पानी में क्या होते हैं, अनवांटेड बैक्टीरियाज घुल जाते हैं. देन एनी सब्सटेंस दैट कैन किल द माइक्रोब्स व्हिच प्यूरिफाइज द वाटर शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द ड्रेन. ऐसे सब्सटेंसेस जो वो बैक्टीरियाज को मारते हैं, जो वाटर को साफ करते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हमें ड्रेन में नहीं छोड़ना चाहिए. Also, all solid items should be thrown in the dustbins. Then waste water from basins, from sinks and from washing machines can be used for watering plants. Then leakage in the sewer line. अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई लीकेज आ रहा है आपकी sewage line में तो आपको उसको चेक करके जल्दी से जल्दी रिपेयर करना चाहिए. These are the certain precautions that we should take by using or doing all these things. So with this topic your chapter ends here. Now it is your responsibility to read this chapter thoroughly. You have to understand the meaning of this chapter, right? You have to learn all the difficult words along with their meanings. Also you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.